Hello everyone, I welcome you all to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6th. In this presentation, we'll be covering chapter number 3, Playing with Numbers, and we'll be finding the solution to exercise 3.3. Let us proceed to the first question. What does the first question says? It says that we need to use divisibility tests and determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. We simply have to write the answer in yes or no. हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर इस कॉलम में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें एक एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है with these numbers. Like for example, जब हम 128 की बात कर रहे हैं तो हमें 128 की divisibility चेक करनी है with 2, that is it divisible by 2. फिर हमें चेक करना है with 3 and like this हमें इन सब numbers के साथ इसकी divisibility test करना है. If it satisfies the divisibility test तो हमें यहाँ yes लिखना है. If it doesn't satisfy तो हमें no लिखना है. But in order to check whether a number is divisible by a particular number or not, हमें उसकी divisibility test के कुछ rules पता होने चाहिए. सबसे पहले हम divisibility test के rules करेंगे हर एक number के different. सबसे पहले हमारे पास है divisibility by 2. So divisibility by 2 क्या कहती है? That if a number is divisible by 2, it has any of the digits as 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक नंबर 2 से divisible है तो उसकी ones place पे या तो कोई even digit होना चाहिए, that is या तो 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि वो particular number 2 से divisible है. You just have to look at the ones place and determine whether that particular number is divisible by 2 or not. Second है हमारा divisibility by 3 का test. Divisibility by 3 की test क्या कहता है? If the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है और हमें चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, हम सिंपली उस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे और अगर वो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ऐसा माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. Moving on to the divisibility test of 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक नंबर 4 से divisible है तो उसके last 2 digits जो हैं, that is the digits that are at the ones and the tens place, will be divisible by 4. अगर एक नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है. Moving on to the divisibility test of 5. A number is divisible by 5 if it has 5 or 0 at its ones place. इसका क्या मतलब हुआ कि एक नंबर 5 से तभी डिविजिबल माना जाएगा जब उसकी वंस प्लेस पे या तो 5 हो या तो 0 हो. So we'll say that that particular number is divisible by 5 unless otherwise it won't be divisible by 5. Moving on to the divisibility test of 6. Divisibility test of 6 जो है वो दो नंबर्स की divisibility test पे डिपेंड करता है. कैसे? If a number is divisible by 2 and 3 both, it is divisible by 6 also. इसका क्या मतलब हुआ? एक नंबर को 6 से divisible होने के लिए 2 and 3 both से divisible होना जरूरी है. यहाँ both highlight क्यों किया है मैंने? इसलिए क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसा है जो 2 and 3 में से एक से divisible है लेकिन दूसरे से नहीं है
तो हमारा जो कंक्लूजन डिराइव होगा वो डिराइव होगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर 6 से डिविजिबल तभी माना जाता है जब वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एज वेल एज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 दोनों को सेटिस्फाई करे। लेट्स मूव ऑन टू other divisibility tests. Next we have is divisibility by 8. Divisibility of 8 का जो टेस्ट है it is similar to the divisibility of 4. बस डिफरेंस क्या है कि divisibility of 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते थे, लेकिन divisibility of 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। सो अगर एक नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। Let's move on to the divisibility of 9. Divisibility of 9 is similar to the divisibility of 3. That is, जब हम एक नंबर के डिजिट्स का सम करेंगे, अगर वो सम डिविजिबल बाय 9 निकल कर आता है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगर हमने उसकी डिजिट्स का सम किया और वो 9 से डिविजिबल नहीं हुआ तो हम ऐसा कहेंगे कि वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। मूविंग ऑन टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10, ये सबसे इजी है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 एट इट्स वंस प्लेस। तो एक नंबर 10 से तभी डिविजिबल माना जाता है अगर उसकी वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट हो, 0 हो। और कोई होगा तो वो 10 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। Now let us move on to the last divisibility test that we have, that is divisibility by 11. Divisibility by 11 is one of the most important divisibility tests and a little time consuming as well. Difficult नहीं है, let's see कैसे किया जाता है ये। If the difference between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right of the number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर ले रही हूँ 6 3 1 4 maybe 0 and okay let's take 5. अब इसको हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड जो भी डिजिट्स हैं हम उनको पहले ऑड या इवन प्लेसेस असाइन करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा ऑड से शुरू करते हैं एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यू ऑलवेज प्रोसीड लाइक दिस। ओके, सो ऑड, even, odd, even, odd, even। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड हर एक नंबर को ऑड या इवन में से एक प्लेस असाइन कर दी है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड ओनली। स्टेप नंबर 2 इज हम सबसे पहले जो भी ऑड प्लेसेस पे लाई कर रहे हैं उनका सम कर देते हैं। सो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है एंड 5 लाई कर रहा है। सो व्हाट इज 3 प्लस 4 प्लस 5? इट इज इक्वल टू 12। तो अभी हमने सिर्फ ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम किया है। स्टेप नंबर 3 इज हम अब इवन प्लेसेस की डिजिट का सम करेंगे। इवन पे क्या क्या है, 6 है, प्लस इवन पे 1 है, प्लस इवन पे 0 है। सो इवन प्लेसेस की डिजिट्स का क्या सम आया, 7। स्टेप नंबर 4, हमें ये जो दोनों हमने आंसर्स निकाले हैं हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे, यानी इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। व्हाट इज 12 माइनस 7? इट इज इक्वल टू 5।
अब जो हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट डिपेंड करती है वो इस नंबर पे करती है। अगर ये नंबर 0 है या फिर डिविजिबल बाय 11 है तो हम कहेंगे दैट दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सिंस इन दिस केस ना तो ये नंबर 0 है ना ही 5 इज डिविजिबल बाय 11, therefore this particular number is not divisible by 11. So divisibility of 11 is not difficult. You simply have to follow these steps and you'll get your answer right. तो अभी तक हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ लिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हम हर एक नंबर को चेक कर सकें कि वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है या नहीं। I have already explained all the tests to you. So what can we do is हम एक नंबर पिक करते हैं इसमें से। I'll show it to you कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे and then we can proceed very easily. So let's pick a random number. Supposedly हम ये पिक कर रहे हैं 990 हमने पिक किया। तो 990 का सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहता था कि अगर वंस प्लेस पे या तो 0 है या फिर कोई इवन नंबर है then that particular number will be divisible by 2. Clearly 990 में जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 0 है, therefore it satisfies the divisibility test of 2. तो हमने कहा कि 990 is divisible by 2. Moving on to the divisibility test of 3. 990 को अगर 3 से डिविजिबल होना है तो इसके जो डिजिट्स का सम है उसको 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। So what is the sum of the digits of 990? We'll simply add them. It's 9 plus 9 plus 0, which is 18, right? Is 18 divisible by 3? Yes, it is. Therefore, 990 is also divisible by 3. Proceeding to the divisibility test of 4. divisibility test of 4 क्या कहता था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। बट लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं दैट इज 90 वो 4 से डिविजिबल नहीं है, therefore 990 is not divisible by 4. Moving on to the divisibility test of 5. Divisibility test of 5 के अकॉर्डिंग जो वंस प्लेस की डिजिट थी उसे 0 या फिर 5 होना जरूरी है। इन दिस केस 990 में जो वंस प्लेस की डिजिट है वो क्लियरली 0 है, therefore yes 990 is divisible by 5. If we move on to the divisibility test of 6, तो divisibility test of 6 के लिए हमें वापस आना पड़ेगा divisibility test of 2 पर and divisibility test of 3 पर। अगर 990 इन दोनों के टेस्ट को satisfy करता है तो वो 6 से भी divisible माना जाएगा। Does 990 satisfy the divisibility test of 2 as well as 3? Yes, it does. Therefore, 990 is divisible by 6 as well. Moving on to the divisibility test of 8. Divisibility test of 8 के according जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उस पर्टिकुलर नंबर के उन्हें 8 से डिविजिबल होना जरूरी है, तभी वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस ये नंबर है ही 3 डिजिट, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8. Moving on to the divisibility test of 9. Divisibility test of 9 के according अगर sum of digits is divisible by 9 तो पूरा का पूरा digit माना जाता है divisible by 9. हमने sum of digits already निकाला था, it came out to be 18 and 18 is divisible by 9, therefore 990 is also divisible by 9. Moving on to the divisibility test of 10. According to the divisibility test of 10, if a number has to be divisible by 10, तो उसके ones place पे कौन सा digit होना चाहिए? 0 होना चाहिए. And clearly 990 के last digit पे 0 है, therefore 990 is divisible by 10.
Now let us move on to the last divisibility test, that is divisibility by 11. इस केस में हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट्स लाई कर रही हैं, and we'll start from the right always. So odd, even and odd again. तो odd places पे कौन सी डिजिट्स लाई कर रही है, 9 लाई कर रहा है and 0 लाई कर रहा है. तो what is the sum? It comes out to be 9 only. Again, even digits पे कौन सी, इवन प्लेसेस पे कौन सी डिजिट्स लाई कर रही है, एक ही डिजिट है क्योंकि छोटा सा नंबर था, दैट इज 9 ओनली. सो इसका तो किसी के साथ सम नहीं होगा. द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज 9 minus 9? 9 minus 9 is 0 and it does satisfy the condition for the divisibility of 11. क्योंकि divisibility of 11 क्या कहता था कि जब हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो वो या तो 0 होना चाहिए या वो divisible by 11 होना चाहिए. Since we got the answer as 0, therefore 990 is divisible by 11. So this is how you will proceed for all of the numbers that are given here. It's very easy. You simply need to remember the divisibility test and you will be able to find your answer very easily and very quickly. थोड़ा सा ध्यान देने वाला जो divisibility का test है वो है divisibility of 11. Okay. This is it for this question. Let us move on to question number 2. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8. तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. हमें इन सब नंबर्स का divisibility by 4 भी चेक करना है और divisibility by 8 भी चेक करना है. हमें दोनों के रूल्स हमने पढ़े हैं, तो हम सिंपली उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कौन सा नंबर divisibility by 4 को सेटिस्फाई करता है और कौन सा नंबर divisibility by 8 को सेटिस्फाई करता है. Let us have a look at the very first part, that is 572. तो 572 में सबसे पहले हम divisibility by 4 चेक करते हैं. Divisibility by 4 के अकॉर्डिंग जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से divisible होने चाहिए, तब पूरा का पूरा नंबर 4 से divisible माना जाएगा. Since we can see कि 72 is divisible by 4, therefore हमने एक conclusion draw कर ली that 572 is also divisible by 4. तो ये इस नंबर ने divisibility by 4 के टेस्ट को satisfy कर दिया है. Moving on to the divisibility of 8 now. Divisibility by 8 के according जो लास्ट के तीनों डिजिट्स हैं वो 8 से divisible होने चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि नंबर ही 3 डिजिट नंबर है तो हमें इस पूरे नंबर को चेक करना पड़ेगा कि वो 8 से divisible है या नहीं. Clearly this number, that is 572, is not divisible by 8. Hence पूरा का पूरा नंबर भी divisible by 8 नहीं होगा. So it only satisfies the test of divisibility of 4 and not of 8. This is how you will do all of the parts. Let's have a look at the B part now. B part में जो हमें नंबर दे रखा है वो दे रखा है ये. अब अगर हमें divisibility of 4 चेक करनी है तो हम सिंपली लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे जो कि है 52, and 52 is divisible by 4. Therefore ये पूरा का पूरा नंबर, that is 7,26,352, is also divisible by 4. नेक्स्ट जब हम divisibility of 8 चेक कर रहे हैं हमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं. लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो है 352, which is also divisible by 4. आपको कैसे पता लगा कि ये which is also divisible by 8. आपको कैसे पता लगा कि ये 8 से divisible है? आप सिंपली इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करके देख सकते हैं. If no remainder is left, तब ये पूरा पूरा divisible माना जाता है. So since the last 3 digits are divisible by 8, therefore this whole number, that is 7,26,352, is also divisible by 8. Moving on to the C part. C part थोड़ा सा different है
क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 0। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 0 एक ऐसा नंबर है जो हर एक डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में जब हमने लास्ट के 2 डिजिट्स देखे, दैट इज 0 0, हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ की कि ये डिविजिबल बाय 4 है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के रूल के अकॉर्डिंग 5500 भी 4 से डिविजिबल माना जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो है 500, बट अनफॉर्चुनेटली 500 8 से डिविजिबल नहीं होता है। Therefore, ये पूरा का पूरा नंबर that is 5500 is also not divisible by 8. Moving on to the D part now, we have the number as 6000. इस केस में भी हम सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए। क्लियरली सिंस दे आर 0 तो हम मानेंगे कि वो डिविजिबल बाय 4 हैं। Therefore, ये पूरा का पूरा नंबर जो कि 6000 है वो भी डिविजिबल बाय 4 है। ऑन द अदर हैंड जब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक कर रहे हैं तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं दैट इज 000 वो भी डिविजिबल बाय 8 हैं। देयरफॉर हम मानेंगे कि 6000 भी डिविजिबल बाय 8 है। सो दिस इज वन नंबर जो कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डिविजिबिलिटी ऑफ 8 को भी सेटिस्फाई करता है। Let us move further. Moving on to the E part. E part पे जो हमारा नंबर है वो है 12,159। अगर हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखें तो 59 जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं बिकॉज 4 के टेबल में 60 आता है। सो 12,159 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम लास्ट के 3 डिजिट्स कंसिडर कर रहे हैं दैट इज 159, वो 8 से डिविजिबल नहीं है। Therefore, ये पूरा का पूरा नंबर that is 12,159 is not divisible by 8. Moving on to the F part. What are the last 2 digits? It's 60. 60 is divisible by 4. Hence, 14,560 is also divisible by 4. On the other hand, जब हम लास्ट 3 डिजिट्स देख रहे हैं दैट इज 560, वो भी 8 से डिविजिबल हैं आ रहे हैं। Therefore, 14,560 is divisible by 8. Moving on to the G part again. जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं दैट इज 84, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 को। Therefore, 21,084 is divisible by 4. एंड जब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की बात कर रहे हैं तो जो लास्ट 3 डिजिट्स बन रहे हैं दैट इज 084, वो 8 को सेटिस्फाई 8 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। Therefore, 21,084 is not divisible by 8. I think we've done quite many parts ताकि you are easily able to understand the concept and you're able to understand how to solve such questions. So I think you can proceed to do H, I and J part very easily. You simply have to look at the last 2 digits for the divisibility of 4 and the last 3 digits for the divisibility of 8. उसको अगर वो satisfy करता है तो वो divisible माना जाएगा, अगर नहीं करता है तो नहीं माना जाएगा। अगर आपको एक नंबर को चेक करना है कि वो 4 या 8 से डिवाइड होता है या नहीं, you can use the long division method. Let us proceed towards the next question now. Let us proceed to question number 3. Okay. Using divisibility tests, you need to determine which of the following numbers are divisible by 6. तो अब हमें इन सब numbers की जो divisibility test करनी है वो 6 से check करना है. We all know for a number to be divisible by 6, it has to satisfy the divisibility test of 2 as well as 3. दोनों के टेस्ट को satisfy करना जरूरी हो जाता है. So let us look at the very first number, that is this number 2,97,144.
तो जब हम डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो या तो इवन हो। क्लियरली यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 4 है जो कि इवन है। Therefore 2,97,144 is divisible by 2. डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए जब हम इस नंबर के डिजिट्स का सम करेंगे तो उसे 3 से डिविजिबल होना जरूरी है, और जब हमने सम किया तो वो निकल कर आया 27 which is divisible by 3। तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ की कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। क्लियरली 6 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए हमने लिख दिया that 2,97,144 is divisible by 2 and 3, therefore it is also divisible by 6। तो हमें इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, पहले आप 2 की डिविजिबिलिटी शो करेंगे, उसके बाद 3 की, एंड देन accordingly you will write whether that particular number is divisible by 6 or not. Also you have to give proper justification why is that particular number divisible or not divisible by any number। आपके लिए रीजन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Let us move to the next part now। B part जिसमें नंबर है हमारे पास 1258। क्लियरली ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट 8 है। नेक्स्ट जब हम 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स हमारा 16 आ रहा है, सो 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द होल नंबर दैट इज 1258 is also not divisible by 6, क्योंकि उसने 2 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर दी लेकिन वो 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और अगर उसको 6 से डिविजिबल होना है तो दोनों की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई करनी जरूरी है। Let's move to the next part now, that is 4,335। This is not divisible by 2। Why? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है which is an odd number। On the other hand जब हमने sum of digits किया it came out to be 15 which is divisible by 3, therefore this number 4,335 is divisible by 3, but since it is not divisible by 2 therefore this number will not be divisible by 6। दो हमें फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दैट इज 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके पता लग गया था कि ये डिविजिबल नहीं होगा 6 से क्योंकि वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, but that doesn't mean that you will not show the divisibility test of 3। you have to do that even if it doesn't satisfy still। Moving on to the next part, D part, it is 61,233। क्लियरली ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है वो है 3। ऑन दी अदर हैंड जब हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी तो वो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट्स निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 15। Therefore 61,233 is divisible by 3। लेकिन क्योंकि वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए हम कहेंगे कि 61,233 is not divisible by 6। Let us have a look at the E part now। E part का जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, that means वो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। On the other hand जब हमने सम ऑफ डिजिट्स किया 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो 16 निकल कर आया। Therefore 9,01,358 it is not divisible by 3, therefore it doesn't satisfy the divisibility test of 6 as well। यहाँ पर हमारा ये वाला नंबर आना चाहिए and not this। It should be 9,01,000, it should be 9,01,352।
तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और यहाँ पर भी हमारा सेम नंबर आना चाहिए 9,01,352 and here as well 9,01,352 तो ये 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि इसने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को फेल कर दिया है. मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट नाउ. एफ पार्ट में जो हमारा लास्ट का डिजिट है दैट इज द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, देयरफॉर इट सैटिस्फाइज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. और जब हमने इसके सम ऑफ डिजिट्स किया इट केम आउट टू बी 27 व्हिच इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. So therefore ये जो particular number है that is 4,38,750 is divisible by 6 as well. Moving on to the G part now. The G part says कि जो ये number है इसकी last digit 4 आ रही है, that means it divisibility of 2 को satisfy कर रहा है. और जब हम इस sum of digits भी किया तो वो भी 30 निकल कर आ रहा है which is also divisible by 3. Therefore this number that is 17,90,184 is divisible by 6. It's quite simple. I guess we've discussed almost all the parts, so it's the same way that you have to do. You just have to satisfy that particular number with the divisibility of 2 first. Then you will check for the divisibility of 3. अगर वो दोनों की divisibility को satisfy कर रहा है तो वो divisible by 6 होगा. अगर उन दोनों में से एक को भी नहीं कर रहा है तो वो divisible by 6 नहीं होगा. So H and I part will be done in the same manner. Moving on to question number 4 now. We need to use divisibility tests and we need to determine which of the following numbers are divisible by 11. Now here comes the most important divisibility test, that is the divisibility of 11. In some numbers के लिए हमें 11 की divisibility को check करना है. तो let's move to the next slide. Okay, तो सबसे पहले तो हम step wise चलेंगे. तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो हमें निकालना है sum of digits at odd places from the right. I already told you that we start counting the digits from the right और हम odd से start करते हैं. It is odd, then even, then odd, then even, then odd and you move like that. तो जितना भी बड़ा नंबर है वो उस अकॉर्डिंग इन सब के अंदर हम पुट कर देंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट कौन सा है. इट इज 5,445. तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग फ्रॉम हियर. 5,445. सबसे पहले जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 and 5. तो हमने उन दोनों का सम कर दिया. इट केम आउट टू बी 9. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम करेंगे. दैट इज 5 and 4 अगेन. तो इनका भी जो सम निकल कर आ गया वो आ गया 9. जब हमने 9 minus 9 किया तो हमारा आंसर आ गया 0. और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के अकॉर्डिंग जब डिफरेंस हम निकालते हैं दैट इज जो हमारा ये वाला आंसर निकल कर आता है, either it should be 0 or it should be divisible by 11. So clearly since it is 0 तो हम कहेंगे that 5,445 is divisible by 11. So this is how you will proceed stepwise to check the divisibility test of 11. Let's move to the B part now. B part का हमारा question देखते हैं क्या है. B part है it's 10,824. तो इसको पहले हम यहाँ पुट कर लेते हैं. 10,000. Okay, it will come from here, not here. Let me use the eraser. हमने काफी सारे कॉलम्स बना लिए हैं तो we can simply arrange them. It was
10,824. Okay, so 10,824. सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे देख लेते हैं क्या क्या लाई कर रहा है. ऑड प्लेसेस पे एक तो 8 लाई कर रहा है, एक तो 4 लाई कर रहा है और एक 1 लाई कर रहा है. तो 4 है, 8 है और 1 है. हमने जब उनका सम किया इट केम आउट टू बी 13. अब जब इवन प्लेसेस का हम सम कर रहे हैं दैट इज 2 + 0, इट केम आउट टू बी 2. इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा आंसर आया 11, which is obviously divisible by 11. इसलिए 10,824 भी 11 से divisible होगा. So this also satisfies the test. Moving on to the C part. हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं. Let's write down odd, even, odd, even, odd, even. ओके, अब यही स्टॉप हो जाते हैं. अगर हमें और की जरूरत पड़ी तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे. नेक्स्ट जो हमारा नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है. इट्स 71,38,965. सो पहले नंबर लिख लेते हैं. 71,38,965. I think it would be more convenient कि जब हम नंबर पहले लिख लें और हम वो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस बाद में असाइन करें, क्योंकि नंबर्स वेरी करते हैं. कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है. सो हमने सबसे पहले नंबर लिख लिया और अब हम उसको प्लेसेस असाइन करनी शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड विद ऑड, देन वी गो इवन, we go odd, even, odd, even and again odd. अब सबसे पहले odd places find करते हैं. कौन सी हैं? Starting from here, 7 plus 3 plus 9 plus 5. So the sum came out to be 24. On the other hand, जब मैं even places पे जाऊं तो it's 6 plus 8 plus 1, which comes out to be 15. दोनों को जब subtract किया तो what is 24 minus 15? It is 9. Neither it is 0 nor it satisfies the divisibility test of 11. Therefore, 71,38,965 is also not divisible by 11. डी पार्ट पे मूव करते हैं. ये भी काफी बड़ा नंबर है हमारे पास. तो व्हाट इज दिस नंबर? इट इज 7 crore or 1,69,308. So let us write it down. 7 crore 1,69,308. So we're going to start from the right hand side again. Odd, even, odd, even, odd, even, odd, even. अब हमने इनको इनकी प्लेसेस असाइन कर दी हैं. Once you assign these places, it becomes easy for you to actually know कौन सा डिजिट किस पे लाई करता है. तो पहले odd places देख लेते हैं. odd पे है 8 plus 3 plus 6 plus 0. So sum comes out to be 17. अब even places देख लेते हैं. Even places है 7, 1, 9 and 0. It comes out to be 17 again. So जब हमने 17 minus 17 किया तो हमारा आंसर आ गया 0, which satisfies the divisibility test of 11. Therefore, 7 crore 1,69,308 is also divisible by 11. So I guess the steps are quite clear to you now. Okay, let's move to the E part now. The number is this. It's a very big number. हम I think यहीं पे assign कर देते हैं. It will be more easy. तो सबसे पहले हम odd places count करनी शुरू करते हैं. From the right, we have 1, 0, 0 and 0.
So the sum comes out to be 1 only. Even places देख लेते हैं. 0, 0, 0, 1. Again we have the sum as 1. The difference, since it comes out to be 0, it satisfies the divisibility test of 11. Therefore it is divisible by 11. F part, starting from the odd place, 3, 1, 0. The sum comes out to be 4. Even places, 5, 1, 9. The sum comes out to be 15. What is the difference? What is 15 minus 4? Again it is 11. Okay, जब आप डिफरेंस निकालते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज दैट कि आप ऑड माइनस इवन करें. आप ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करेंगे and not छोटे में से बड़ा. So 15 minus 4, it is 11 and it is divisible by 11. Therefore this particular number is also divisible by 11. Moving on to question number 5. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करना है. सबसे पहले हमें कोई स्मॉलेस्ट डिजिट फिट करना है इस पर्टिकुलर ब्लैंक में. ऐसे फिट करना है कि यह नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए. बी पार्ट में क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करना है ताकि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए. अब हम करेंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो है ब्लैंक 6724. हमारा सम ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिट्स क्या है, मतलब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, विदाउट इंक्लूडिंग द ब्लैंक ऑफ कोर्स, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है. द सम कम्स आउट टू बी 19. फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3, हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 19 डिविजिबल नहीं होता 3 से. So the smallest digit to be added to this sum to make it divisible by 3 is 2. Why? Because जब हम 19 plus 2 करेंगे तो वो 21 आएगा और 21 divisible by 3 होता है. तो smallest digit जब हम fit करेंगे तो वो fit होगी 2. Moving on to the greatest digit now. क्योंकि 19 था हमारा sum already, हमें अगर उसको 3 से डिविजिबल करना है और हमें एक ग्रेटेस्ट डिजिट फिट करनी है तो हम उसमें 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर हम 9 ऐड कर देते तो वो 28 बन जाता, वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होता. जब हमने 19 में 8 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 27, जो क्लियरली 3 से डिविजिबल है. तो ग्रेटेस्ट डिजिट जो हमारे ब्लैंक में पुट करी जाएगी वो पुट करी जाएगी 8. So this is how you do such questions. Let us solve the B part in the same manner. जो हमारा sum of existing digits आ रहा था वो आ रहा था 24. जब हमें smallest digit find करनी है तो हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, because 20 itself is divisible by 3. तो जो smallest digit हमारी ऐड होगी वो ऐड होगी 0, क्योंकि हमें नंबर को चेंज करना ही नहीं है. तो जब हम 0 ऐड कर देंगे ब्लैंक की जगह पे तो हमारा नंबर आ जाएगा डिविजिबल बाय 3. ग्रेटेस्ट डिजिट क्या पुट करेंगे हम, लेट्स सी. क्योंकि ये 24 था ऑलरेडी, अगर हम 24 में 9 प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 33. इसका मतलब जो ब्लैंक में ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करी जाएगी वो पुट करी जाएगी 9, and hence the number becomes divisible by 3 by putting 9 as the greatest digit. Let's move to question number 6. Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. तो अब हमें इस क्वेश्चन में ब्लैंक में ऐसी डिजिट फिट करनी है जो इस नंबर को 11 से डिविजिबल बना दे. इसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है. ओके, सबसे पहले हम सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस करेंगे. वील मूव इन द सेम मैनर जैसे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के केस में मूव करते हैं. जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 14. अब हम सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस करते हैं, वो हमारा 17 निकल कर आ रहा है. जब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिफरेंस आ रहा है 3. नाउ टू मेक इट डिविजिबल बाय 11,
8 should be added at the even place such that 17 plus 8 is 25. Now, the difference between the sum of digits at odd and even places is 25 minus 14, which is 11. तो अगर हमें इस नंबर को 11 से डिविजिबल करना है तो 8 को हमें रखना पड़ेगा इवन प्लेस पे, क्योंकि जब हम इवन प्लेसेस में 17 प्लस 8 कर देते हैं तो वो 25 आ जाता है, और जब हम इवन प्लेस जो कि अब 25 बन चुका है आफ्टर एडिंग 8, उसमें से हम अगर 14 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11, जो कि डिविजिबल है 11 से, इसलिए वो उस पूरे नंबर की डिविजिबिलिटी को भी सैटिस्फाई कर देगा. मूविंग ऑन टू द बी पार्ट नाउ. अगेन हम ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम करेंगे, वो आ रहा है 8. अब हम इवन प्लेसेस की डिजिट का सम करेंगे, वो आ रहा है 25. डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आया 17. नाउ टू मेक इट डिविजिबल बाय 11, 6 शुड बी एडेड एट द ऑड प्लेस. तो जो ऑड प्लेस है उसमें हमें प्लस 6 करना पड़ेगा ताकि जो हमारी ऑड प्लेसेस का सम बने वो बने 14. हमें ऑड प्लेसेस का सम 14 क्यों बनाना है? क्योंकि जब हम 25 माइनस 14 करेंगे तो वो अगेन 11 निकल कर आएगा और वो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सैटिस्फाई करेगा, इसलिए वो नंबर को डिविजिबल बना देगा 11 से. So you simply proceed with the normal steps. This is it for this presentation. Thank you so much for watching. अगर आपको ऐसे ही और अच्छे NCERT की solutions चाहिए, please visit our website arinjacademy.com and kindly subscribe to this YouTube channel, that is Arinjay Academy. So keep growing, keep learning.